temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. There are many things in the Bible which are written for our learning. देखिए, बाइबल में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे सीखने के लिए लिखी गई हैं। Many instances in the lives of people of God from the Old Testament, we can learn many things from it. पुराने नियम के लोगों के जीवन से बहुत सी घटनाएं लिखी गई हैं ताकि हम उनसे सीख सके। Many times we learn from the mistakes that they made. और कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने जो गलती की थी उससे हम सीख सकते हैं। How we can avoid falling into the same pitfalls that they fell into. और हम कैसे उन गड्ढों में गिरने से बच सकते हैं जिनमें वो गिरे थे, ये बताया जाता है। Word of God says in 1 Corinthians chapter 10 and verse 11, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 11 में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है। it says about the children of Israel who came out of Egypt. All these things happened to them for examples, that they were written for us, our admonition, upon whom the ends of the world are come. परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी कि वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई There are हैं। so many things we learn from the Word of God. हम परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। And those who don't study the Word and meditate on the Word, they lose a lot of knowledge and understanding. और जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है, उसका अध्ययन नहीं करते हैं, वो बहुत सी समझ की बातों को ऐसे ही खो देते हैं। And there are people who say, brother, we don't need the Old Testament, New Testament is enough. और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं, भाई हमें पुराने नियम की जरूरत नहीं है, नया नियम हमारे लिए काफी है। Only the words of Jesus is enough. केवल यीशु के जो वचन है वही हमारे लिए काफी हैं। But we forget that the entire Bible was inspired by God. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पूरी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। Every page in the Bible has been inspired by the Spirit of God. बाइबल का हर एक पन्ना जो है ये तो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। And it's profitable for us. और ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायी है। The Word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, all scripture is given by inspiration of God. सारा वचन जो है ये तो परमेश्वर की प्रेरणा से ही दिया गया है। And it's profitable for us for instruction, for correction, for righteousness and for admonition. और ये तो हमें सुधार के लिए और साथ में धार्मिकता और हमें शिक्षा देने के लिए सच में बहुत ही लाभदायी ऐसा वचन है। And when we read the Old Testament also, और जब हम पुराना नियम भी पढ़ते हैं, we find many characters in the Bible. हम बाइबल में ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं, Their life, उनका जीवन, what they did. उन्होंने क्या किया। Many people who walked with God. बहुत से लोग जो परमेश्वर के साथ में चल रहे थे। And we can learn wonderful lessons from their life. और उनके जीवन से हम बहुत ही अद्भुत ऐसी शिक्षा सीख सकते And हैं। there are many people who made great mistakes. और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की And we हैं। can learn great things from their life also. हम उनके जीवन से भी बहुत सी बातों को सीख सकते हैं। I will title my message today, Unshakable Faith. और आज के मेरे संदेश का मैं नाम रखूंगा, कभी न डगमगाने वाला विश्वास। How to develop an unshakable faith. किस तरह से कभी न डगमगाने वाले विश्वास को हम बना सकते हैं। We will study from the life of one character in the Bible. हम बाइबल के एक व्यक्ति के जीवन से इस बात को And सीखेंगे his name is Joseph. और उसका नाम है यूसुफ। And we'll study for the next few weeks about him. और अगले कुछ हफ्तों तक हम इसके बारे में अध्ययन करते जाएंगे। Because in his life we find wonderful things we can learn and apply in our own lives. क्योंकि उसके जीवन में आप ऐसी बहुत सी अद्भुत बातों को देखेंगे जिसे हम सीख सकते हैं, अपने जीवन में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। The story starts from the book of Genesis chapter 37. और ये कहानी उत्पत्ति अध्याय 37 से शुरू होती है। ये यहाँ से शुरू होती There है। was a character in the Bible called Jacob. बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था याकूब। And he had 12 sons. और उसके 12 बेटे थे। And the Bible says in Genesis chapter 37 and verse 3, और उत्पत्ति अध्याय 37 वचन 3 में बाइबल कहती है, Jacob loved Joseph more than all his children, and because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. Verse 3.
वचन 3 कहता है, इसराइल यानी याकूब अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा And बनवाया। verse 4 says, and when his brethren saw it, that his father loved him more than all his brethren, they hated him, and they would not speak peaceably with him. और वचन 4 कहता है, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर रखने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। इस तरह से वचन हमें बताता है। This is a mistake many parents are making. और यही तो ऐसी गलती है जो बहुत से माता पिता करते We may हैं। have maybe 1, 2 children, 3 children, 4 children, but sometimes the danger is that you love one child more than the others. हो सकता है कि आपके 1 या 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो, लेकिन कई बार खतरा तो ये होता है कि आप किसी एक बच्चे से दूसरों से ज्यादा प्यार Not करते all हैं। children are same. देखिए, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सभी बच्चे जो हैं एक जैसे नहीं होते हैं। Everyone has their own character. हर एक में अपना अपना चरित्र होता है। Some are very smart and intelligent. कोई तो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान Some होते are हैं, very hardworking. और कुछ तो बहुत मेहनत करने वाले होते हैं, Some are very laid back and easygoing. और कुछ लोग थोड़ा सा देरी करते हैं, बड़े आराम से अपनी जिंदगी को जीते हैं। ऐसे लोग होते Jacob loved Joseph more than all his other brothers. हैं। याकूब जो है यूसुफ के सभी भाइयों से बढ़कर यूसुफ से प्यार करता था, ऐसे वचन कहता And है। it says that because of that, the brethren started hating Joseph. और ये कहता है कि इसी के कारण जो उसके भाई थे वो यूसुफ से नफरत करने लगे थे। See, when we show partiality to one child against the other children, there will be jealousy and envy and hatred will come. जब हम एक बच्चे के बारे में दूसरे बच्चे के सामने पक्षपात करते हैं तो वो उसके बारे में निश्चित जलन और नफरत रखते जाते हैं। And very times it can lead to tragedy. और कई बार ये तो बहुत ही दुखद ऐसी घटना की ओर लेकर जा सकता है, अपघात की ओर ले जा सकता है। And this what happened in Joseph's life. और ये तो यूसुफ के जीवन में हुआ था। But they hated him so much, they tried to kill him. और वो उससे इतनी नफरत करते थे कि वो उसे मार देना चाहते थे। We should learn as parents. माता पिता के रूप में हमें सीखने की If जरूरत you है। have children, remember every child is precious in the sight of God. अगर हमारे बच्चे हैं तो याद रखिए कि हर एक जो संतान है, हर एक बच्चा परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य Not है। only the very intelligent and hardworking, but everyone is precious in God's sight. केवल वही नहीं जो बहुत ही बुद्धिमान है या मेहनत करने वाला है, लेकिन हर एक परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य व्यक्ति होता And है। we should realize माता पिता को जानना चाहिए that we are caretakers of these children. कि हम इन बच्चों की केवल देखभाल करने वाले हैं। It's not, oh, they are my children, they are mine. It's not like that. ये ऐसा नहीं कि वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे हैं, ऐसी बात नहीं है। Every child was born in the heart of God before they came into this world. हर एक जो संतान है इस संसार में आने के पहले वो तो परमेश्वर के दिल में जन्मे हैं। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता Psalm है, 139, we won't read that. भजन संहिता 119 में ये कहता है, हम इसे नहीं It पढ़ेंगे। says, before I was even formed in the mother's womb, all my members were written in your book. ये कहता है कि मेरी माँ के गर्भ में इसके पहले कि मैं आकार लेता, मेरे शरीर के जो सारे अंग है वो तेरे सामने प्रकट थे। Every child is precious in the sight of God. हर एक बच्चा परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य होता है। And God has a good plan for every child. और हर एक संतान के लिए परमेश्वर के पास में अच्छी योजनाएं हैं। And we should never make a mistake of preferring one child to the other. और हमें कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि एक बच्चे को ज्यादा महत्व दे और दूसरे को न दे। As parents, we must be very careful to avoid this. माता पिता होने के नाते हमें इन सारी बातों को टालने के लिए सावधान रहना है। Don't show partiality, be equal, love everyone equally. आप पक्षपाती न हो, सभी बच्चों से एक समान प्यार करते चले जाएं। When we recognize that they are God's children, then we will be careful how we deal with them. जब हम इस बात को जानते हैं कि ये तो परमेश्वर की संतान है तो उनसे व्यवहार करने के लिए हम बहुत ही सावधान हो जाते हैं। Because if we ill-treat any child and love one more than the other, God is not going to be pleased with it. अगर हम एक बच्चे से बुरा व्यवहार करते हैं और एक से दूसरे से ज्यादा बढ़कर प्यार करते हैं तो परमेश्वर इस बुरे व्यवहार को अनदेखा नहीं करेगा। Now let us learn a few things from the life of Joseph. आइए यूसुफ के जीवन से हम यहाँ पर कुछ बातों को सीखते चले जाते हैं। The first thing we learn, सबसे पहली बात हम सीखते हैं, he was at a very young age, he started becoming sensitive to the things of God. बहुत ही कम उम्र में वो परमेश्वर की बातों के बारे में सचेत होने लग गया था, वो उसे जानने लग गया Now, था। how do we know that? हम ये कैसे जानते हैं? From a very young age, God was giving him visions and dreams. उसकी बहुत ही कम उम्र से परमेश्वर उसे स्वप्न और दर्शन इस तरह से देने लग गया था। हम इस बात को देखते हैं। In the 37th chapter of Genesis, उत्पत्ति अध्याय 37 में हम देखते हैं, we start seeing the life of Joseph. हम यहाँ पर यूसुफ के जीवन को देखना शुरू He started करते हैं। getting dreams. वो सपने देखने लगता है The first dream he had, और उसने जो पहला सपना देखा
was that all his brothers and he were all in the field, and then they had cut the crop. और वो ये था कि वो और उसके सभी भाई वहां पर खेत में थे और उन्होंने फसल की कटनी की थी। And he saw that his sheaf was standing and other sheep were bending down to his sheaf. और उसने ये भी देखा कि उसकी पूली खड़ी है और बाकी सभी लोगों की पूली जो है उसके सामने दंडवत कर रही है, झुकी हुई है। And he had another dream afterwards. और उसके बाद में उसने एक और सपना देखा। See, what does it mean to say that you're getting dreams? अब देखिए, सपना देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? All of us dream in the night. देखिए, हम सब लोग रात को सपना देखते हैं। Some dreams are prophetic. लेकिन कुछ सपने भविष्यवाणी के होते हैं। God speaks to us in dreams. परमेश्वर हमसे सपनों के द्वारा बातें He करता है। speaks to us in visions. In our spirit, He speaks to us. वो हमारी आत्मा में दर्शन के द्वारा हमसे बातें करता है। He speaks to us through the word of God. वो हमसे परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करता है। He speaks to us in a still small voice where we can hear the voice of the Holy Spirit talking to us. वो हमसे धीमी आवाज में बातें करता है, जहां पर हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। Where the Spirit of God gives us His thoughts. जहां परमेश्वर की आत्मा हमें उसका विचार देती है। It says in the book of Job chapter 33 and verse 14 to 17. अय्यूब अध्याय 33 वचन 14 से 17 में इस तरह से हमें ये बताता है। The first verse 14 says, and God speaks once, even twice, but man does not perceive it. वचन 14 कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक या वरन दो बार कहता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls upon man, in slumberings upon the bed, then he opens the ears of man and seals their instructions. स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वो मनुष्य के कान खोलता है और अपनी शिक्षा And then की it मोहर says in लगाता the है। verse 17, that he may withdraw man from his purpose and hide pride from man, and he keeps back his soul from the pit and his life from perishing by the sword. जिससे वो मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे, और वो उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। इस तरह से अय्यूब का ये वचन हमें बताता है। See, the Bible says God speaks in dreams and visions. देखिए, बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा हमसे बातें करता है। And from a young age, Joseph started getting dreams. और बहुत ही कम उम्र से यूसुफ जो है वो तो सपने देखने लगता है। From that I learned that he was a sensitive person. He was sensitive to the voice, things of God. और इससे मुझे पता चलता है कि वो परमेश्वर की बातों के लिए, परमेश्वर की आवाज के लिए बहुत ही सचेत व्यक्ति था। As we grow closer to God and desire intimacy with God, we start learning how to get this spiritual guidances from God. जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते चले जाते हैं, निश्चय हम परमेश्वर की बातों के लिए इस तरह से जो सचेतता है उसे बढ़ाते Why जाते people हैं। don't get these visions and dreams? Because they are not close to God. They don't hunger for God. बहुत से लोग जो हैं वो परमेश्वर से स्वप्न और दर्शन इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो परमेश्वर के करीब नहीं हैं, वो परमेश्वर के लिए भूखे नहीं They हैं। are too busy with their own things and they don't have much time to be with God. वो तो बस अपने कामों में बहुत ही व्यस्त हैं और उनके पास में परमेश्वर की बातों के लिए कोई भी समय नहीं होता है। Many times I keep a book and a pen beside my bed. I say, Lord, speak to me in a dream when I'm sleeping. Let my spirit be sensitive to your और voice. कई बार मैं अपने साथ में पेन और एक बुक रखता हूँ तो और ये कहता हूँ, प्रभु मुझे सपने के द्वारा तू मुझसे बातें कर और मैं निश्चय ही तेरी बातों को सुन सकूँ और मैं उसे लिख कर रख सकूँ। When you have a hunger to hear His voice, God will speak to you. और जब आपके पास में भूख होती है कि आप उसकी आवाज को सुन सके तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। Joseph had that hunger. यूसुफ में ये भूख थी। He loved communing with God. वो तो परमेश्वर के साथ में बातचीत करने में बहुत ही पसंद That's करता why था God was giving him dreams, prophetic dreams. और इसलिए परमेश्वर उसे सपने दे रहा था, भविष्यवाणी And के those सपने। dreams that he saw, और वो जो सपने जो उसने देखे थे they came to pass in his life. और वो तो उसके जीवन में निश्चय ही पूरे It's होते not चले some गए। silly dreams. ये कई ऐसे बेकार के सपने नहीं थे। God had a special heart for Joseph. परमेश्वर ने यूसुफ के लिए खास विचार रखा हुआ था। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता draw है, nigh unto God and he will draw nigh to you. परमेश्वर के निकट आओ तो वो निश्चय तुम्हारे निकट आएगा। इस तरह से वचन कहता Whenever है। a man seeks after God, God will reveal himself to him. जब भी कोई मनुष्य परमेश्वर को खोजता है, परमेश्वर उस पर अपने आप को प्रकट करता है। God looks for people whose heart is hungry for him. परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनका दिल उसके लिए मानो भूखा है। Let's ask God to give us the same hunger that Joseph had. और आइए हम प्रभु से वही मांगे कि यूसुफ के जैसी वो हमें वैसी भूख देते चले जाए। Because God will guide you in wonderful ways. क्योंकि परमेश्वर बड़े अद्भुत तरीके से आपका मार्गदर्शन करते चले जाएगा।
Now we see the second thing about Joseph. अब हम यूसुफ के बारे में दूसरी बात को देखते हैं। He was a very innocent person. वो तो एक बहुत ही मासूम व्यक्ति था। He had no craftiness in his heart. उसके दिल में कोई भी धूर्तता की बातें नहीं थी। He had no cunningness in his heart. उसके दिल में किसी तरह से कोई भी धूर्तता नहीं थी। He never thought bad about others. वो तो दूसरों के बारे में कभी कोई बुरा महसूस नहीं कर सकता था, How do सोचता we नहीं know था। that? हम इसे कैसे जानते हैं? See, when he got the first dream, देखिए, जब उसने पहला सपना देखा, the dream about the sheaves and the other sheaves, there were 12 sheaves. He got a dream of 12 sheaves. और उसने वहां पर देखा कि उसके सामने 12 पूलियां हैं, इस तरह सपना देखा And था। his sheaf was standing up, और उसकी जो पूली थी वो खड़ी हुई and थी, the other 11 sheaves were bending to him. और उसके सामने बाकी 11 जो पूलियां थी वो तो झुकी हुई थी, दंडवत कर And रही it says थी। that immediately he went and told his brothers about what the dream he got. और ये कहता है कि तुरंत उसने जाकर अपने भाइयों को बताया कि उसका सपना क्या था। He was so innocent in his mind. वो अपने मन में बहुत ही मासूम था। He never thought that if I tell them this dream, they'll get angry with me. He never thought like that. उसने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं उन्हें ये सपना बताऊंगा तो वो मुझ पर क्रोधित होंगे, ऐसे कभी विचार नहीं किया। They say in Hindi, नेक दिल, नेक कंटे innocent heart. और जैसे हिंदी में कहा जाता है कि नेक दिल मतलब मासूम They दिल। never think the consequence of what they just simple-minded and they just open up their heart. देखिए, उसने इसके परिणाम के बारे में नहीं सोचा, बड़े सरल मन से उसने अपना दिल खोलकर उन्हें सब कुछ बता दिया था। He just trusted his brothers, trusted everybody. उसने अपने भाइयों पर और सभी लोगों को पर पूरा भरोसा रखा था। The Bible says, when the brothers heard the dream, they hated him even more. और बाइबल कहती कि जब उसके भाइयों ने सपने के बारे में सुना तो वो उससे और भी ज्यादा नफरत After करने some लगे। time, he got a second dream. और कुछ समय बाद उसने दूसरा सपना देखा। By then, he should have understood. Last time I told my dream and they hated me. Then let me be quiet this time. उस समय उसे समझ जाना चाहिए था, पिछली बार मैंने अपना सपना बताया था, उन्होंने नफरत की, तो अच्छा है कि इस समय मैं उन्हें कुछ भी न बताऊं, ऐसे वो सोच सकता था। But this second time also, he opened up and told everybody. लेकिन दूसरी बार भी उसने खुलकर सभी को ये सब कुछ बता दिया था। He was so innocent. वो तो सच में बहुत ही मासूम The था। second dream he had was और दूसरा सपना जो उसने देखा the था, sun and the moon and there were 12 stars. और सूरज, चांद और 12 तारे उसके सामने खड़े थे, ऐसे उसने सपने में And he देखा। said, in his dream, he saw the sun and the moon and 11 stars bowing to him. और उसने अपने सपने में देखा कि सूरज, चांद और 11 तारे उसके सामने में दंडवत कर रहे हैं, ऐसे उसने देखा था। ये वो बताता And है। he went and told his father and his brothers again. He openly told them again. और उसने जाकर अपने भाइयों को और अपने पिता को खुले रूप में सब कुछ बता He दिया was था। so innocent. वो इतना मासूम था। The Bible says in verse 11, his brothers envied him. और बाइबल वचन 11 में कहती है कि उसके भाई उससे नफरत करने लग गए थे, उससे घृणा करने लगे। They got more angry at him. वो तो उस पर और भी ज्यादा क्रोधित हो Even his गए। father said, "Are you meaning to say that your mother and me and your brothers are going to bow down to you?" और यहाँ तक कि उसके पिता ने कहा कि तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हारी माँ और मैं और तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने में दंडवत करेंगे, ऐसे पूछा। But the quality we understand is an innocent quality. यहाँ पर हम एक विशेषता को समझ सकते हैं कि वो तो बिल्कुल मासूम था, ऐसा He व्यक्ति था। never thought bad of others. उसने कभी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचा था। His heart was pure. उसका दिल जो था वो तो बिल्कुल शुद्ध था। When Jesus was on the earth, जब यीशु यहाँ पर इस पृथ्वी पर था he saw a man coming towards him. His name was Nathaniel. और उसने देखा एक मनुष्य उसके पास में आ रहा है, उसका नाम था नथानियल। And Jesus immediately said, "Behold, an Israelite in whom there is no guile." और यीशु ने तुरंत कहा कि देखो ये तो इस्राएली है जिसके अंदर कोई भी दोष भावना नहीं, कोई भी धूर्तता नहीं है, ऐसे यीशु ने उसके बारे में कहा। Such people are precious in God's sight. ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। Their hearts are clean उनका दिल जो है वो तो बहुत ही शुद्ध and होता their है। hearts are pure. उनका दिल बहुत ही साफ होता है, बहुत ही Their शुद्ध mind is होता है। innocent. उनका मन बहुत ही बिल्कुल मासूम There is होता no है। cunning in them. उनके अंदर कोई धूर्तता नहीं होती है। There is no guile or craftiness in them. उनमें कोई भी धूर्तता या फिर कोई भी चालाकी नहीं होती है, ऐसी बात नहीं होती है। God loves such people. परमेश्वर ऐसे लोगों से This is a प्यार करता है। wonderful quality we must develop. Innocence. और ये तो बहुत ही अद्भुत विशेषता है जो हमें होनी चाहिए, वो है मासूमियत। हमें Because the होनी word of चाहिए। God says, क्योंकि प्रभु वचन कहता है, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। With all our craftiness and deception and cunning, we're not going to see God. देखिए, हमारी धूर्तता और चालाकी से हम परमेश्वर को कभी नहीं देख पाएंगे। हम इससे कभी परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। We have to ask God, "Lord, take away this cunningness and this bad nature from me." हमें परमेश्वर से इस तरह से पूछना चाहिए, मांगना चाहिए कि प्रभु ये सारी धूर्तता और बुरे स्वभाव को मुझसे तू दूर कर Give दे। me a pure heart.
मुझे शुद्ध हृदय दे। Let me never look at somebody with the wrong intention. और मैं कभी किसी को बुरे मकसद के साथ में न देखूं, ऐसे कहें। Let me not have malice in my heart trying to hurt somebody. मेरे दिल में किसी तरह से कोई द्वेष भावना ना हो कि मैं किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश Let me करूं। always think good about others, not bad about others. मैं दूसरों के बारे में हमेशा बुरा नहीं लेकिन भलाई के बारे में सोचते जाऊं। Things which are pure and just and good, let me think on those things. ऐसी बातें जो कि शुद्ध है, जो कि भली है, अच्छी है, मैं केवल उन्हीं बातों के बारे में सोचते चले जाऊं। God will help you. और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। God loves his people to be innocent. परमेश्वर बहुत पसंद करता है कि उसके लोग बिल्कुल मासूम बने रहें। That's a childlike character. ये तो छोटे बच्चे के जैसे चरित्र है। Jesus said, if you don't become like a child, you will not enter the kingdom of heaven. जब यीशु ने कहा कि अगर तुम बालक जैसे नहीं बनते हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। So it's important that we should ask God, Lord, transform my heart. और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरे दिल को तू If बदल there is दे। any guile or if there is any cunningness in me, take it out of me. अगर मेरे अंदर में कोई भी धूर्तता है या कोई भी चालाकी है तो उसे तू मुझसे दूर कर दे। इस तरह से परमेश्वर से कहते जाएं। We sing a song. हम एक गीत गाते हैं, Change my heart, O God. प्रभु तू मेरा दिल बदल, Make it ever true. इससे तू सच्चा बना May I be like you. और मैं बस तेरे जैसे होते जाऊं। That's what we should pray for. हमें बस इसी के लिए प्रार्थना करनी Lord, चाहिए। transform me into your nature. हे प्रभु मुझे अपने स्वभाव में बदलते चले जा। Make me an innocent person. मुझे एक मासूम व्यक्ति बना, Make me a pure person. मुझे एक शुद्ध व्यक्ति बना प्रभु। If somebody looks at me, अगर कोई मेरी ओर देखता है they must say, this is a man, there is no guile in this man. तो उन्हें कहना चाहिए कि यह ऐसा मनुष्य है जिसके अंदर में कोई भी धूर्तता या कपट नहीं है। This man is a clean-hearted man. ये व्यक्ति तो शुद्ध दिल वाला व्यक्ति है। He never thinks wrong about others. वो दूसरों के बारे में कभी गलत नहीं He समझता है। doesn't gossip about others. वो किसी के बारे में बुरा नहीं कहता And he है doesn't slander others, try to spoil their character. और वो दूसरों के बारे में झूठ नहीं कहता ताकि उनके चरित्र को नाश कर सके। Ask God to give you that heart of innocence. परमेश्वर से कहें, मांगे कि वो आपको ऐसे मासूम दिल दे। Joseph had that heart. यूसुफ के पास ऐसा दिल था And I think we learn from his life. और मैं सोचता हूँ हम उसके जीवन से We सीख can सकते हैं। also have that heart. और आपके पास भी ये दिल हो सकता है। We should ask God for it. हमें परमेश्वर से ये मांगना चाहिए। I want to ask you one thing. मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, Do you know Jesus Christ? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? Do you find that your heart is full of bitterness, anger, and hatred? क्या आपको ऐसे लगता है कि आपका दिल केवल नफरत, कड़वाहट और घृणा से भरा हुआ है, इन सारी बातों से भरा If है? someone looks at you, will they say that you are a pure-hearted person? अगर कोई आपकी ओर देखें तो क्या वो ये कहेंगे कि आप एक शुद्ध दिल वाले व्यक्ति हैं? If not, अगर नहीं you can have it. तो आप इसे पा सकते हैं। You can become an innocent, pure person in the sight of God. आप परमेश्वर की दृष्टि में एक मासूम और निर्दोष व्यक्ति हो सकते हैं। Whatever you have done in the past, आपने भूतकाल में चाहे जो कुछ भी किया हो, you might have done many wrong things, आपने शायद बहुत सी गलतियां की हो, but God can change you. लेकिन परमेश्वर आपको बदल सकता He है। can clean you out, वो आपको पूरी तरह शुद्ध कर सकता and He है can transform you into a new person. और वो आपको बदलकर नया व्यक्ति बना सकता है। And when God forgives you, He forgets what you have done. और जब परमेश्वर आपको क्षमा करता है तो आपने जो कुछ किया वो उसे That's the भुला देता greatness है। of God. ये परमेश्वर की महानता है। God says, परमेश्वर कहता your है, sins I will remember no more. तुम्हारे पापों को मैं फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। As far as the east is from the west, I will remove your sins from you. जहाँ तक कि पूर्व और पश्चिम दूर है, उतनी दूर मैं तुमसे तुम्हारे पाप कर दूंगा। If you want to have that blessing, अगर आप ये आशीष पाना चाहते हैं, if you want to become a pure-hearted person, अगर आप एक शुद्ध दिल वाले व्यक्ति होना चाहते हैं, if you want your heart to be changed, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल जो है पूरी तरह से बदल then come जाए, to Jesus. तो आप यीशु के पास में He आइए। will transform you. वो आपको बदल देगा, He can change you. वो आपको बदल सकता है। The Bible says, बाइबल कहती when a है, man be in Christ is a new creature. अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, सब कुछ बदल गया है, All things are passed away, पुरानी बातें बीत गई and है behold, all things have become new. और देखो सब कुछ नया हो गया है। This I can testify from my own life. मैं अपने जीवन से इस बात की गवाही दे सकता हूँ। When I came to know Jesus Christ, my life changed. जब मैंने यीशु मसीह को जाना तो मेरा खुद का जीवन बदल गया And all the old things that were there were और removed. वहां पर जो भी पुरानी बातें थी सब निकाल दी गई, हटा दी And गई। from degree to degree, day by day, year by year, God is transforming into His image. और हर एक स्तर पर और हर एक दिन और हर एक साल परमेश्वर मुझे पूरी तरह से बदलते गया। Why don't you receive Jesus Christ into your life? क्यों ना आप अपने जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार कर Maybe ले। you have never done it before. शायद आपने इसे पहले कभी नहीं किया But है, remember one thing, लेकिन याद if you रखिए don't have Jesus, अगर आपके पास यीशु नहीं है all that you have done in this life is wasted. तो आपने इस जीवन में जो कुछ भी किया सब कुछ बेकार हो जाता है। You will end up in a place called hell, which is eternal punishment. आप तो निश्चय ही नरक में जाएंगे जहां पर अनंत काल का दंड होगा, वो ऐसी जगह होगी
विश्वासियों को ढूंढिए, fellowship with them. उनके साथ संगति कीजिए। God bless you. परमेश्वर आपको I'll see you आशीष next दे। week. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।